Alrighty, we are just going to continue with our topic from the previous part. So, as of yet, we have studied few of the formulas, and first formula we studied is related to the radiant flux intensity. That is, F is equals to L divided by 4 pi d square. Next, we studied the formula related to the luminosity, and that formula is luminosity is equals to Stefan and Boltzmann constant, as a luminosity is directly proportional to the surface area and the temperature power 4. And next, we studied another formula that the maximum wavelength into the temperature of the radiation will always be constant, and that constant value is appearing as what? That wavelength maximum into thermodynamic temperature is equals to 2.9 times 10 power minus 3. So for each value of wavelength, if we multiply it with the thermodynamic temperature, we will always get a constant value of equivalent to 2.9 into 10 power minus 3, right? So now this is one of the question which will help us out in finding out the radius of the sun. तो ये जो दोनों laws हैं, L is equals to sigma a t power 4, and second one is lambda into temperature is equals to constant. So both of these laws are going to be used for finding out the radius of a sun. जब भी हमने किसी सन का या स्टार का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हम ये दोनों लॉज का इस्तेमाल करेंगे. So this is one of the example being shown in front of you. It says that there is one giant star, red giant star near to us, and that is called as Betelgeuse. So it has a luminosity of 4.49 to 10 power 3, and it emits radiation with a peak wavelength of 850 nanometer. Right? Question says calculate the ratio of the radius of the Betelgeuse RB to the radius of the sun. और radius of a sun हम उसने हमें पहले से बताया हुआ है. तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ की इक्वेशन लिखते हैं. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? It is lambda max into t is equals to 2.9 into 10 power minus 3, right? And from this हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे उस स्टार का. तो rearranging it, temperature will be equals to 2.9 divided by lambda max. We are provided with the wavelength of the star. The wavelength of the star is 2.9 to 10 power minus 3 whole divided by 850 into 10 power minus 9. When both of them are divided with one another, तो हमारे पास temperature of star कितना आ जाएगा? The temperature of the star will be equals to 3410 Kelvin. So once हमें temperature पता चल गया, now we are going to put it in the uh, Stefan-Boltzmann law. So what is the formula for the Stefan-Boltzmann law? The formula for the Stefan-Boltzmann law is L equals 4 pi r square. Instead of area, it is going to be sigma into t power 4. तो हमने क्या निकालना है यहाँ से? हमने ये r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. We are provided with the value of the luminosity, we are provided with the value of sigma, we are provided with the value of t. So let's make R as a subject. So RB will be equals to under root L divided by 4 pi sigma t power 4. तो L की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, 4 पाई भी गिवन है, सिग्मा की वैल्यू हमें याद होगी और आपको डेटा शीट में भी प्रोवाइडेड होगी. सो वैल्यू ऑफ सिग्मा विल बी प्रोवाइडेड इन द डेटा शीट एज वेल. मल्टीप्लाई बाय टी. टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन. तो टेम्परेचर इन केल्विन को लाइक 3410 पावर 4 से डिवाइड कर देंगे. So when you are going to take the under root of whole of this value, this will be equals to what? It will be equals to 6.83 into 10 power 11 meter. But question हमें ratio find करने को कह रहा है. Ratio means कि आप divide कर दो radius of Betelgeuse को with the radius of sun. तो इन दोनों को अगर हम divide करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 983. So this is a method or mechanism how we can find out the radius of a star, and finding the radius of a star is a part of your syllabus. To keep this in your mind, जब भी आपने किसी स्टार का रेडियस फाइंड करना है, आप दो लॉस के थ्रू वो फाइंड आउट करेंगे. वन ऑफ द लॉ इज कॉल्ड एज Stefan Boltzmann law, and the other law is Wien's displacement law.
दोनों के फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और दूसरा लॉ हमारे पास क्या है? that luminosity is equals to area into Boltzmann constant into temperature power 4. Yes, people, is this fine? Sir, shouldn't the 850 nanometers be converted to meters? It has been converted ना बेटा. अगर आप ऊपर देखें 850 नैनो, नैनो की वैल्यू क्या होती है? 10 power minus 9. It has been converted into nano. Is it okay? Sir, and will they give this value of Wien's displacement law? Yeah, you have to memorize this whole formula. This will not be provided. Wayne's displacement formula is to be memorized. That lambda max into temperature is equals to 2.9 into 10 power minus 3 times of mk, right? 2.9 into 10 power minus 3 times of m into k. Yes, shall I move on? Speak up, people. चलो आगे. Yeah. Okay, next is a very important concept as per our syllabus, and that is known as redshift. Right, so you are like witnessing, yeah, we can continue with the concept of this redshift with the example of the Doppler's effect. I do believe that you would have studied the Doppler's effect phenomena in your previous year as well in an AS physics. So what is happening in the case of Doppler's effect? Okay, whenever any sound source is moving away from you, its wavelength of the sound increases and frequency decreases. Or if some sound source is moving towards you, its frequency increases but wavelength decreases. So the apparent change in the wavelength and frequency due to the relative motion of the source and the observer, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉपलर्स इफेक्ट. तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता था कि किसी भी वेव का किसी भी साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का चेंज होना जब भी कोई सोर्स आपकी तरफ मूव कर रही हो या आपसे दूर जा रही हो. ठीक है. अच्छा, डॉपलर इफेक्ट अभी आपका इसका सिलेबस में नहीं है स्पेस फिजिक्स से, लेकिन ये समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर ऐड ऑन किया हुआ है. बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एट द बैक ऑफ दिस? द कॉन्सेप्ट इज रेड शिफ्ट. सिमिलर डॉपलर इफेक्ट जैसी कहानी लाइट्स में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी नजर आती है. और वो क्या है कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि लेट्स से अर्थ से कुछ गैलेक्सी, यानी कि जो भी गैलेक्सीज हैं, लेट्स से, या कोई भी स्टार है, कोई भी अगर स्टार है या कोई भी अगर गैलेक्सी है, if there is any galaxy or a star which is moving away from earth, जो कि जमीन से क्या कर रही है? which is moving away from the earth, it has been observed कि उस लाइट की, यानी कि वो जो स्टार लाइट जो एमिट कर रहा है, उसकी लाइट की वेवलेंथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. उसकी उस लाइट की, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. और वेवलेंथ जब इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है. तो ये जो फिनोमेना है कि इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted from the receding star or a galaxy as observed on the earth, this phenomena is known as redshift. इसको हम क्या बोलते हैं? redshift बोलते हैं. अगर इसको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हम क्लियर करें, हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपनी एएस के फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो अगर हम स्पेक्ट्रम बनाए विजिबल लाइट का, ठीक है, वी नो विजिबल लाइट is formed of how many colors? Visible light is formed of 7 colors. So it begins with violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red.
राइट, एनी ऑफ द विजिबल लाइट इज बीइंग फॉर्म्ड ऑफ दीज 7 कलर्स। तो आपको पता होगा कि जो वॉयलेट या ब्लू साइड होती है, इट हैज स्मॉल वेवलेंथ। उसकी वेवलेंथ क्या होती है? उसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है। और जो रेड साइड है, रेड साइड पे इट इज हैविंग लार्ज वेवलेंथ, इट इज हैविंग हाई वेवलेंथ, इट इज हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ। तो लाइट का शिफ्ट हो जाना टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, लाइट का शिफ्ट हो जाना टुवर्ड्स रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, शिफ्टिंग टुवर्ड्स रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। तभी उसको हमने क्या नाम दिया है, इस फिनोमेना को नाम दिया है रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट किस चीज को बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted from a receding star or a galaxy। receding का मतलब क्या होता है? receding का मतलब होता है moving away। तो रेड शिफ्ट का मतलब ये है कि जो भी स्टार या गैलेक्सी जमीन से दूर जा रहा है, जो भी स्टार और गैलेक्सी जमीन से दूर जा रहा है, उस वो जो भी लाइट वक्त के साथ साथ एमिट कर रहा है, वो तमाम लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। यानी कि आज अगर उस गैलेक्सी की हम वेवलेंथ मेजर करें, और अगर चंद दिनों बाद उसकी वेवलेंथ मेजर करें, तो हमें उसकी वेवलेंथ में इंक्रीज नजर आएगा। दिस इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज नोन एज रेड शिफ्ट। तो किसी भी गैलेक्सी का दूर जाना हमें क्या बताता है कि उसकी जो लाइट है, उसकी जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, दे आर गेटिंग रेड शिफ्ट। सो रेड शिफ्ट मींस व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ रेड शिफ्ट? द इंक्रीज इन द वेवलेंथ, या आप ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन वेवलेंथ या डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। The increase in wavelength or decrease in frequency due to the source and the observer receding from each other। इस पूरी डेफिनेशन में एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted। ठीक है, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ of radiation emitted due to the source and observer receding from each other is known as redshift। और रेड शिफ्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज होता है? क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो आप ये बोलोगे चेंज इन वेवलेंथ, यानी कि आप ये बोलोगे न्यू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला न्यू वेवलेंथ माइनस एक्चुअल वेवलेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेवलेंथ will be equals to speed with which the galaxy is moving away, speed of galaxy divided by speed of light in vacuum। ठीक है, तो इसके थ्रू हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन वेवलेंथ ओवर ओरिजिनल वेवलेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड विद विच गैलेक्सी इज मूविंग अवे डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है रेड शिफ्ट के फिनोमेना को फाइंड आउट करने में, या कितनी नई वेवलेंथ थी वो। और इसी तरह अगर आपने फ्रीक्वेंसी में की टर्म में बात करना है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे आप लिखोगे? चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू speed with which the galaxy is moving away divided by the speed of light। So delta F over F is equals to V over C। So these are the two formulas which you should be knowing। तो अगर कोई गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही है, तो हम उस फिनोमेना को बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, क्योंकि उस वक्त वेवलेंथ कम हो रही होगी। और जब अगर कोई गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट। जी बच्चों समझ आ गया मीनिंग ऑफ रेड शिफ्ट क्या है? रेड शिफ्ट का मतलब है सिंपल के वेवलेंथ का इंक्रीज होना। किसकी वेवलेंथ का?
जो भी लाइट कोई गैलेक्सी एमिट कर रही है उसकी वेवलेंथ का इंक्रीज होना जैसे जैसे वो गैलेक्सी या स्टार अर्थ से दूर जाता जा रहा है। ठीक है, द वे एज द गैलेक्सी और अ स्टार इज मूविंग अवे, उसकी वेवलेंथ का बढ़ जाना, उसकी वेवलेंथ का इंक्रीज हो जाना इज नोन एज रेड शिफ्ट। यू पीपल टेल मी, चले मूव ऑन। Yeah. Okay, so we can see this from the spectrum being shown here। तो आपके पास ये एक स्पेक्ट्रम शो हुआ है जिसमें ये लेफ्ट साइड पे रेड है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और फिर लास्ट में वॉयलेट कलर शो हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, दीज आर द लाइंस जो कि सोर्स हमें भेज रही है, यानी कि नॉर्मल वे में कोई भी गैलेक्सी की लाइट है। अगर वो गैलेक्सी, अगर उसी का पैटर्न हम दूर किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से चेक करें तो हमें डिस्टेंट गैलेक्सी से उसका पैटर्न कैसा नजर आएगा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना जो कलर्स को डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे से, दे आर मोर मूव टूवर्ड्स द रेड एंड, वो ज्यादा रेड एंड की तरफ मूव हुई हुई हैं। तो रेड कलर की तरफ ये स्पेक्ट्रल लाइंस ज्यादा मूव हुई हुई हैं। तो ये शो करता है कि जितनी गैलेक्सी दूर जाएगी, जितनी गैलेक्सी दूर जाएगी वो उतना ज्यादा लाइट को रेड शिफ्ट करेगी, वो उतना ज्यादा लाइट को स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो हम ये रेड शिफ्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो बॉटम पे लिखी हुई है। क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स इन द लेबोरेटरी हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4.57 into 10 power 14। Okay, that the same line in the spectrum of the light from a distant galaxy has a frequency of 4.547 into 10 power 14। Okay, that what is the speed of the what speed is the distant galaxy moving in relation to the earth? तो आपने स्पीड फाइंड करनी है उस गैलेक्सी की कि वो कितनी स्पीड से अर्थ से मूव कर रही है, एंड इज इट मूविंग टूवर्ड्स और इज इट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। तो हमने ये बताना है क्या वो हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है। तो हम क्या फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी divided by actual frequency is equals to the speed with which star is receding divided by speed of light। तो यहाँ से अगर हम देखें दोनों का चेंज इन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगी, दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। तो दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस किया हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.3 इंटू 10 पावर 12। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास होती है 3 इंटू 10 पावर 8, और एमिटेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 4.57 इंटू 10 रेज टू पावर 14। इट इज 4.57 इंटू 10 रेज टू पावर 14। तो इसकी वैल्यू को हमने v निकालना है, तो इस फॉर्मूला से हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे। v इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ सी ओवर एफ। तो इसमें c की वैल्यू को प्लग इन कर दें, चेंज इन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को प्लग इन कर दें, एंड देन डिवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ f। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्पीड विद विच द गैलेक्सी इज मूविंग अवे। तो कितनी स्पीड से गैलेक्सी दूर जा रही है वो स्पीड हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ पे उसकी वैल्यू प्लग इन की, this and final answer is this is the speed with which galaxy is moving away। और क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है डिस्टेंट गैलेक्सी की और वेवलेंथ ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि सोर्स जो है इट इज रिसीडिंग या इट इज मूविंग अवे। तो वेवलेंथ जब बढ़ेगी तो इट इज मूविंग अवे। So if the frequency is less than the wavelength, it's moving away, and Yes, when the frequency, opposite is more. exactly, the frequency is, if the frequency is less, wavelength is more, the galaxy is moving away। Yes, is it done? Yes, people tell me, shall I move on? We are just left with a very small part of this chapter. Almost this chapter is about to be over. Shall I move on? Yes, sir. Okay, next. Uh,
फ्रॉम द दिस रेड शिफ्ट फिनोमिना हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यस दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो ये जो रेड शिफ्ट का फिनोमेना है, एस्ट्रोनॉमर्स को उसने सोचने पे मजबूर किया कि हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम गैलेक्सीज जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और आप तमाम गैलेक्सीज को आपस में कंबाइन करें, व्हाट इज द नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज? व्हेन ऑल द गैलेक्सीज आर जॉइंड टुगेदर इट इज नोन एज यूनिवर्स। ठीक है, व्हेन ऑल द गैलेक्सीज आर कंबाइंड टुगेदर इट इज फॉर्मिंग अ यूनिवर्स। तो इसका मतलब ये है कि रेड शिफ्ट ऑफ द लाइट which is emitted from the galaxy tells us that this universe is expanding। सारी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। और इसने ये आइडिया पुट इन किया that space between the earth and the galaxy is increasing, and this expansion stretches out the light waves as they travel through space, which is shifting towards the red end of the spectrum। और जितना ज्यादा रेड शिफ्ट होता जाएगा, गैलेक्सी उतनी स्पीड से हमसे दूर जाती जा रही है। तो ये जो रेड शिफ्ट का फिनोमेना है ये एक्सप्लेन करता है, ये एविडेंस देता है कि दिस यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग। ये जो यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। और इसी चीज के ऊपर हमारे पास एक और astronomer आया। The name of the astronomer was Hubble। He presented one of the law, and what he presented, he said कि जितनी स्पीड के साथ कोई गैलेक्सी दूर जा रही है, ठीक है, जितनी ज्यादा गैलेक्सी अर्थ से दूर है वो उतनी स्पीड से हमसे दूर जा रही है। यानी कि द recessional speed of the galaxy is directly proportional to the distance from the earth। the more is the distance of the galaxy, वो उतनी ज्यादा स्पीड से हमसे दूर जा रही है। राइट? what is Hubble's law? Hubble's law says the recessional speed of the, you must be knowing, you must be learning all these laws। the recessional speed of galaxy moving away from the earth is proportional to their distance from the earth। जितना ज्यादा जमीन से डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा स्पीड से वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। और इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं v is proportional to d। and from this we can also state that v is equals to h naught of d। what this h naught is known as? h naught को हम बोलेंगे Hubble's constant। the value of this h naught is called as Hubble constant। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है हबल कांस्टेंट की? यू हैव टू मेमोराइज दिस वैल्यू, 2.2 into 10 raised to power minus 18 per second। ठीक है, what is the value of Hubble's constant? You have to memorize this। Hubble's constant is equals to 2.2 into 10 power minus 18 per second। और हबल्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? v is equals to h naught time d। what is v in it? v is the galaxy's velocity, d is the distance of the galaxy from the earth, h naught is called as Hubble's constant। और Hubble's constant किस यूनिट में मेजर होता है? it is measured in a unit as power minus 1 per second। इस यूनिट को बोला जाता है पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ हबल्स कांस्टेंट इज पर सेकेंड। और हमें ये इक्वेशन भी ये बता रही है कि जितना दूर कोई गैलेक्सी है जमीन से वो उतनी स्पीड से, उतनी ज्यादा स्पीड से वो और दूर जाती जा रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रिसेशनल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे रखेंगे, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे रखेंगे, तो एक हमारे पास कैसा ग्राफ बन रहा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा होगा। और इस स्ट्रेट लाइन का जब भी आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, this gradient will be equivalent to Hubble constant। ये ग्रेडियंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा? हबल कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो ये ग्राफ ये शो करता है कि जो गैलेक्सी जमीन के करीब हैं वो स्लो मूव कर रही हैं, जो गैलेक्सी जमीन से दूर हैं वो ज्यादा स्पीड पे मूव कर रही हैं। इज दिस फाइन? इज द हबल्स लॉ अंडरस्टैंडेबल? हरी अप प्लीज स्पीक अप। जी guys, can you tell me, is this understandable? Shall I wait or shall I move on? We are just left with hardly one two more things।
So Hubble's law says the speed of the galaxy is directly proportional to the distance. So V is equals to h naught into d. And the value of h naught should be understandable. The value of h naught is to be memorized. It is 2.2 into 10 power minus 18. और ये 2.2 into 10 power minus 18 जो है ये ऐसी वैल्यू है जो कि आपको आगे हेल्प आउट करेगी इस यूनिवर्स की एज कैलकुलेट करने में। जी कोई कंफ्यूजन इसमें, एनी क्वेश्चन? Okay, moving onwards to the next part. Next, it says finding out the age of a universe. How we can find out the age of a universe? Simple सा तरीका है, जब भी आपने यूनिवर्स की एज को फाइंड करना है, एज ऑफ यूनिवर्स इज बेसिकली equals to the reciprocal of Hubble's constant. Hubble's constant का आप रेसिप्रोकल ले लो, आप एज ऑफ यूनिवर्स फाइंड कर सकते हो। और हमने ये देखा एच नॉट किसके इक्वल होता है, एच नॉट वी ओवर डी के इक्वल होता है, वन ओवर एच नॉट किसके इक्वल होगा, डी ओवर वी के। So this is the formula which can help you out to estimate the age of a universe. और generally जो हमारे पास age of universe आती है, the age of universe is normally equivalent to, it is estimated कि ये 14 billion years के equal है। तो किसी भी गैलेक्सी का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ हमें पता हो और वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो वी कैन फाइंड आउट, वी कैन एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट द एज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, सो ये जो रीडिंग सारी लिखी हुई है वो सारी यही बात बता रही है। इफ गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर देन दे मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम सम सिंगल पॉइंट, और in the past, so if this is true, the universe like to begin in an extremely hot dense single point and subsequently उस point ने expand करना शुरू किया। On this phenomenon, this theory gives us the feedback और gives us the concept of Big Bang theory। तो Big Bang theory यही कहती है कि जो यूनिवर्स है एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ हुआ है और एक बहुत बड़ा सिंगल पॉइंट पे धमाका हुआ, जिसके बाद ये यूनिवर्स केम इनटू बीइंग हुआ और जितने भी पार्टिकल्स थे वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड करते रहे, एक दूसरे से दूर जाते रहे, और जब से यूनिवर्स बना है तब से लेकर अब तक एक्सपेंशन होती जा रही है। और क्या चीज एविडेंस बनी बिग बैंग थ्योरी की? रेड शिफ्ट। द रेड शिफ्ट, जो रेड शिफ्ट ऑफ लाइट है, जो रेड शिफ्ट ऑफ ईएम रेडिएशन है, that became the clue for a Big Bang theory. So, redshift of galaxies and the expansion of the universe are now some of the most prominent pieces of evidence to suggest the theory. और हमने एज ऑफ यूनिवर्स निकालनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द Hubble's constant. So 1 over h naught will give us the age of universe. Yes, people, is this point clear? Shall I Sir, move on? sir, do we have to explain the Big Bang Theory in like the यस paper? यस, आपको कुछ बस बेसिक पॉइंट्स बिग बैंग थ्योरी के पता होने चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट this universe just came begin from a one single dense point and there was a huge explosion, and after that and since the time all the parts are expanding throughout radially. And what is supporting this idea? The red shifting of the light, which is given out by the galaxy, supports this idea that yes, the universe is continuously expanding and it would have begun from one single point at the start. बस इतना पता होना चाहिए, राइट? आगे चलूं? अरे आप स्पीक अप प्लीज, शैल आई मूव ऑन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट वी आर लेफ्ट विद, और हमारा यहाँ का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम क्विकली सॉल्व करते हैं, देन वी आर डन विद दिस एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी चैप्टर। Question says a galaxy is found to be moving away with a speed of 2.1 into 10 power 7 meter per second. The galaxy is at a distance of 9.5 into 10 power 24 meter from the Earth. Assume that the speed has remained constant. What is the age of universe?
सो यू हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ यूनिवर्स। हम एज ऑफ यूनिवर्स कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। एज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू आइदर 1/h0, या दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि इट इज इक्वल्स टू d/v। सो d/v करें, डिस्टेंस आपको गिवन है, व्हाट इज द डिस्टेंस प्रोवाइडेड, 9.5 into 10 power 24 whole divided by what is v, v is 2.1 into 10 raised to power 7। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एज ऑफ यूनिवर्स आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोनों वैल्यूज को, तो सेकेंड्स में आपके पास कुछ आंसर आएगा 4.52 इंटू 10 पावर 17 सेकेंड्स। और एट द एंड आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास कुछ वैल्यू बन जाएगी। सॉरी, is this fine? So this value will be in seconds. So when you are going to convert it into years, so this will almost be equivalent to 1.43 into 10 raised to power 10 years। और इसको अगर आप नॉर्मली देखें तो ये लिटरली ये अप्रोक्सीमेटली बनता है अबाउट 14 बिलियन ऑफ years। So this is it from finding out the age of universe। जी बच्चों, इज दिस क्लियर? तो ये सारा हमारा चैप्टर था जी अबाउट